ایک والدہ اپنے 8 بچوں کے ہمراہ خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وجہ تھی بھوک، وجہ تھی افلاس، وجہ تھی بے روزگاری۔ پاکستان میں ہزاروں لاکھوں خاندان ایسے ہیں جن کے بچے مختلف ورکشاپ پر، چائے کے ہوٹلوں پہ، کھانے کے ہوٹلوں پہ، مختلف پوائنٹ پر جو ہے وہ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پانی زندگی ہے، لیکن جب یہی پانی آلودہ ہو جائے تو پھر یہ بیماریاں پھیلانے کا باعث بننے لگتا ہے۔ اس نل میں آج تک ہم نے سرکاری پانی نہیں دیکھا۔ یہ ویلفیئر والوں کے پانی اٹھا کے ہم بھر کے اپنے پاس لاتے ہیں۔ سیلانی ہمارا گئے، سیلانی ہمارا گئے۔ ہم ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ پاکستان۔ رحم، ہمدردی، خلوص و محبت اور امدادی باہمی جیسے جذبات کسی بھی معاشرے کی خوبصورتی کا سبب ہوتے ہیں۔ انہی جذبات و احساسات پر مبنی انسانیت کی خدمت زندگی کے ہر شعبے میں کرنے والا بین الاقوامی ادارہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سیلانی ویلفیئر پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے تقریباً تمام شعبہ جات میں خدمت کام کر رہا ہے۔ کم و بیش 5000 ملازمین کے ذریعے 630 مقامات پر ملک اور بین الملک خدمت کام ہو رہے ہیں، اور 2021 میں ہم نے کم و بیش 7 ارب 80 کروڑ کی خدمت کام کیے ہیں۔ اور سیلانی جو ہے پہلی جماعت سے لے کر سی اے تک کی تعلیم دے رہا ہے، بلکہ جو سی اے کر چکے ہیں انہیں بھی ڈیٹا سائنس پڑھا رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم 10 لاکھ بچوں کو آئی ٹی کی ٹریننگ دینے جا رہے ہیں، جس سے انشاءاللہ ملک اور ملت کا قرض بھی اترے گا۔ دعا ہے کہ اس ادارے کو اللہ تعالیٰ قیامت تک قائم دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جو کامیابی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے اعتبار سے جن چیزوں کا ذکر ہوا، مجھے تقریباً ایسا لگا کہ جیسے ایک منی ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ میں آج سیلانی ٹرسٹ کا خاص طور پہ ان کا قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اصل میں تو اس کا جو نعمتیں اللہ کی آپ کو سب سے زیادہ آتی ہیں۔ آپ کا جو ادارہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو کھانا دینا، تو جو ہمارے ساتھ مل کے آپ یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے کہ گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے، لیکن پھر جو اس ملک میں بہت بڑی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا ہمارے ملک میں اثاثہ پڑا ہوا ہے۔ مولانا بشیر احمد فاروقی صاحب، آپ ہمارا کام کر رہے ہیں، جو آپ چھوٹا سا بھی کام کریں گے اس سے ہماری مدد ہوگی۔ نارملی جب کوئی ویلفیئر ٹرسٹ کسی وزیر کو یا گورنر کو بلاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ویلفیئر ٹرسٹ کو بھی کچھ وہاں سے ملے، لیکن یہ ایک عجیب ویلفیئر ٹرسٹ ہے کہ جو حکومتی نمائندوں کو بلا کے بجائے ان سے کچھ داد یا مدد مانگنے کے، وہ دینے کی طرف ہے کہ جی ہم آپ کو 200 اپارٹمنٹ دینا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو اور آپ کی سوچ کو سلام کرتا ہوں۔ میرا جب تک چیف منسٹر ہوں، میرا تنخواہ میں سیلانی ٹرسٹ کے لیے اعلان کرتا ہوں۔ میں نے کوئی اتنا سائنٹیفکلی آرگنائزڈ، ماڈرن، فارورڈ لکنگ اور جو اس کو بیسٹ مینجمنٹ پریکٹسز کہتے ہیں، اس کو ایوالو کیے ہوئے سیلانی ٹرسٹ کے علاوہ اور کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے۔ بشیر فاروقی صاحب، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم ٹربیوٹ بھی پے کرتا ہوں، خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک بہت ہی اعلیٰ کام کر رہے ہیں، نہ صرف سندھ میں بلکہ پنجاب میں بھی، اور میں بلوچستان گیا تو وہاں پر بھی سیلانی ٹرسٹ جو ہے بڑی کامیابی کے ساتھ انسانیت کی خدمت جو ہے وہ کر رہا ہے۔ پہلے سیلانی کا ہر شعبہ مخصوص وقت پر خدمت کرتا تھا، مگر آج سیلانی وقت کی قید سے آزاد ہو کر دن کے 24 گھنٹے سال کے 365 دن انسانیت کی بے لوث خدمت کر رہا ہے۔ سیلانی ہاؤسنگ اسکیم سیلانی ویلفیئر کا ایک ایسا شاہکار منصوبہ ہے جس سے کرائے پر زندگی گزارنے والوں کو اپنے مکان کا مالک بنایا جا رہا ہے۔ اب تک کئی پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں اور سینکڑوں لوگ اپنے خود کے گھروں میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں۔
सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट सालाना 15 लाख अफराद तक सेहत की सहूलियात पहुंचाता है। इस मकसद के लिए मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर क्लिनिक्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर कायम किए हैं, जहां मुल्क के बेहतरीन डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी इलाज और मुआलजे की सहूलत फराहम की जाती है। इदारा मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर के जरिए माँ और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाने की सहूलत भी फराहम कर रहा है। सैलानी वेलफेयर ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया केयर सेंटर के जरिए थैलेसीमिया जैसी मूजी बीमारी से लड़ते बच्चों को मुफ्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अद्वियात, डायग्नोस्टिक और दीगर सहूलियात फराहम करके उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने की काविशें कर रहा है। इदारा जिस्मानी आज़ा से महरूम लोगों को आर्टिफिशियल लिम्ब और सुनने से महरूम लोगों के लिए भी आलाते समात फराहम कर रहा है। इदारे के चेयरमैन हजरत मोहम्मद बशीर फारूक का ये ख्वाब है कि SMIT के तुलबा मुल्क का कर्ज उतारने में अपना किरदार अदा करें। इसी मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए 2014 में सैलानी मास IT ट्रेनिंग का संगे बुनियाद रखा गया, जो आज एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इस दरख्त के साए में रोजाना कई नौजवान अपनी जिंदगियां तब्दील कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद और इस्लामाबाद के नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड नेटिव, ब्लॉकचेन, IoT, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, IT एसेंशियल, CCNA और दीगर कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं। ये कोर्सेज करने के बाद हमारे तुलबा इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग करके सालाना हजारों डॉलर्स कमा रहे हैं और मुल्क में ज़रे मुबादला लाने का बाइस बन रहे हैं। हमारा मंसूबा है कि मुल्क भर में 10 लाख से जायद सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तैयार किए जाएं, जिससे पाकिस्तान की मईशत में सालाना तकरीबन $100 बिलियन का इजाफा होगा। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट मुल्क पाकिस्तान के सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के प्रोग्राम PIAIC में भी बहैसियत पार्टनर शामिल है और नौजवानों को टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे बढ़ाने के लिए कोशा है। SMIT प्रोग्राम की शाखों ने जहां पूरे पाकिस्तान में साया फराहम किया, वहीं थर की जमीन में बसने वाले नौजवानों की जिंदगियां बदलने के लिए भी इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम फराहम की गई और आज ये थर के गैर मुस्लिम बच्चे सैलानी से सनद याफ्ता होने के बाद इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग और जॉब के जरिए सालाना हजारों डॉलर्स कमा रहे हैं। सैलानी वेलफेयर मुल्क पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो बच्चों को मॉन्टेसरी से लेकर CA तक की तालीम फराहम कर रहा है। इस मकसद के लिए इदारे ने सैलानी स्कूल्स ऑफ बिजनेस एंड इस्लामिक लीडरशिप कायम कर लिया है, जहां सैकड़ों तुलबा को CA, CAF, FIA, CSS की तालीम फराहम की जा रही है। इस प्रोजेक्ट में तुलबा की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए उन्हें 100% तक स्कॉलरशिप भी फराहम की जाती है। अनपढ़ और बेहुनर लोगों को हुनरमंद बनाने और अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सैलानी मुख्तलिफ शोबाजात में वोकेशनल ट्रेनिंग भी करवा रहा है। खुसूसन खवातीन के लिए सैलानी ने टेक्सटाइल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत खवातीन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरियात के मुताबिक चंद हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा मोटरसाइकिल मैकेनिक, मोबाइल रिपेयरिंग और दीगर तकरीबन 30 से जायद शोबाजात में वोकेशनल ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिसके बाद उन्हें मुल्क की मारूफ कंपनियों में रोजगार की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है। हमने अक्सर देखा है कि गरीब खानदानों के बच्चे जल्द बड़े हो जाते हैं और स्कूल जाने के बजाय दीगर काम करके अपने घर का खर्च चलाते हैं। सैलानी वेलफेयर ऐसे खानदानों के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन फराहम करता है ताकि ये मुल्क के मुस्तकबिल के मेमार बन सकें। तालीम का ये सिलसिला थरपारकर में जारी है। हमारे आसपास बसने वाले लाखों करोड़ों खानदान ऐसे हैं जो जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। सैलानी वेलफेयर ऐसे खानदानों को एडॉप्ट करता है और घर के सरबराह की तरह उन खानदानों की किफालत करता है ताकि उन खानदानों के बच्चे स्कूल जाकर बेहतर तालीम हासिल कर सकें, उनकी बच्चियां शादी करके इज्जत के साथ अपना घर बसा सकें और अगर उनके घर में कोई बीमार हो तो उसको सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकें। उनको माहाना राशन, यूटिलिटी बिल्स की अदायगी में मदद, घर का किराया और नकदी रकम के अलावा जिंदगी की हर बुनियादी सहूलत मुहैया की जाती है। सैलानी माहाना तकरीबन 12,000 खानदानों की किफालत, 15,000 यतीम मुस्तहिक बच्चियों की शादी में मुआवनत भी करता है। सैलानी वेलफेयर लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए रिक्शा, मोटर बाइक, फिंगर चिप्स मशीन, पॉपकॉर्न मशीन, सिलाई मशीन वगैरह फराहम करता है ताकि ये लोग अपने लिए बेहतर रोजगार का बंदोबस्त कर सकें। सैलानी वेलफेयर छोटे कारोबार के लिए 50,000 से 5 लाख तक कर्ज हुस्ना भी फराहम करता है और साथ ही जिन लोगों के कारोबार लॉकडाउन की वजह से तबाही का शिकार हो गए उन लोगों को बिला सूद, बिला मुनाफा आसान इकसात पर कर्जे फराहम कर रहा है। अलावा अजीम
वहीं ऑनलाइन काम करने के बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए इदारा आसान इकसात पर लैपटॉप भी फराहम कर रहा है। साफ पानी पीना इंसान की बुनियादी सहूलियात में से है, लेकिन अफसोस कि आज कई लोगों को ये सहूलत भी मुयस्सर नहीं। सैलानी वेलफेयर कराची से लेकर तुरखम बॉर्डर तक RO प्लांट नस्ब कर रहा है ताकि साफ पानी की सहूलत हर घर तक मुयस्सर आ सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए इदारे ने मुल्क के कई मुकामात पर कुएं, बोरिंग वगैरह करवाई हैं। इलावा अजीम अवामी मुकामात पर ठंडे पानी की फरहमी के लिए वाटर चिलर की तंसीबात भी की जाती हैं। अब तक 200 से जायद RO प्लांट नस्ब किए जा चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में सिंध रेंजर्स, सिंध पुलिस, NLC, CDA और मुख्तलिफ शहरों के कमिश्नर्स बहैसियत पार्टनर्स शामिल हैं। इदारे ने अपनी खिदमात का आगाज शोबे खुराक से किया और आज रोजाना 2 लाख लोगों के लिए दिन के तीनों वक्त की खुराक की फरहमी का बंदोबस्त किया जाता है। इदारा सुबह के वक्त काम पर जाने वाले मजदूरों और मेहनत कश अफराद के लिए पराठे, छोले, चाय और हलवे पर मुश्तमिल सेहत बख्श नाश्ता फराहम करता है और दोपहर और रात के मुख्तलिफ खानों के साथ गरीबों की जियाफत की जाती है। इदारा गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट जैसे लंगर खाने, पनाह गाहें और कोई भूखा नहीं सोएगा में बहैसियत पार्टनर शामिल है और यहाँ भी आला अज्जा से तैयार करदा सेहतमंद खाने की फराहमी कर रहा है। सैलानी ने दस्तरख्वानों के अलावा रोटी बैंक और मेजबान फ्रीजर भी कायम किए हैं, जहां पैक शुदा तैयार खाना, कच्चा खाना भी मौजूद होता है। जो फर्द चाहे यहां से बिला किसी झिझक खाना ले जा सकता है और अपने घर वालों की भूख मिटा सकता है। सैलानी ने लोगों तक बेहतरीन खाना पहुंचाने के लिए फूड पांडा के साथ MOU दस्तखत कर लिया है, जिसके तहत गरीब लोगों तक वो खाना भी पहुंचाया जाता है जिसके बारे में वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब भी इस मुल्क पर मुश्किल वक्त आया, सैलानी ने अपनी खिदमत के दायरे कार को फैलाया और अवामुन नास की खिदमत को अपने रजाकारों के जरिए यकीनी बनाया। जब कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन की सूरत हाल रूनुमा हुई तो इदारे ने मजदूर तबके में 20 लाख राशन पैकेज तकसीम किए। इसी तरह जब बारिशों ने शहर कराची समेत दीगर इलाकों में तबाही मचाई और लोग अपने घरों में महसूर होने पर मजबूर हो गए, तब भी इदारे के रजाकारों ने इनकी दहलीज तक खुराक और दीगर अशिया पहुँचाए। इलावा अजी जब मेहरान टाउन, कोरंगी या बल्दिया टाउन की फैक्ट्रियों में आग लगने की वजह से कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, इदारे ने उन शुहदा के खानदानों में इमदादी चेक तकसीम किए और उनकी फैमिलीज की माहाना किफालत भी जारी है। जब शाम के मुसलमानों पर बुरा वक्त आया और उन्होंने तुर्की और जॉर्डन में पनाह ली, इदारे ने वहां पहुंचकर भी उनकी खिदमत की और तुर्की के सरहदी शहर क्लीस में शामी मुसलमानों तक खुराक की फरहमी के लिए ब्रेड प्लांट तामीर किया, जिससे रोजाना लाखों लोगों की भूख मिटाई जा रही है। इदारा शहरियों को हादसा से बचाने के लिए सड़क के गड्ढे और गटर के ढक्कन भी लगा रहा है। फायर फाइटिंग का शोबा भी आग लगने के वाकयात पर काबू पाने के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। इन सब खिदमत के अलावा इस्लामी किताबें, तजहीज़ व तकफीन की सहूलत और शहीद मुकद्दस औराक को जमा करके ठंडा करने की सहूलत भी फराहम की जा रही है। रवां साल 2021 में इदारे का अज़्म है कि 8 अरब रुपए खैर के कामों पर खर्च किए जाएं। सैलानी वेलफेयर ऐसे कई काम दिन के 24 घंटे साल के 365 दिन गरीबों के दुख मिटाने, बच्चों तक तालीम पहुंचाने, अनपढ़ लोगों को हुनरमंद बनाने, बीमारों तक इलाज की सहूलत फराहम करने, चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए अपने 5000 से जायद मुलाजमीन के जरिए रोजाना तकरीबन 3 लाख अफराद की खिदमत कर रहा है। आइए खिदमत के इस सफर को मजीद फैलाने के लिए आप भी हमारा साथ दें। जज्बा ईमानी पहचान सैलानी की खिदमत खल्क है।